Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. So finally, this is the session जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो क्या हमारे रेगुलर कोर्सेज से क्लास नोट से आपको डायरेक्टली एपीएससी पेपर में लाए गए हैं. But before starting, I would like to call upon James sir to give very important talks about your future only. So, sir. So, hello everyone. Today we are actually going to discuss how the important questions which we have taught in Bhadra IAS Academy have appeared for APSC exam, and also most important thing, असम में Bhadra IAS Academy इतना trusted academy क्यों होता है? If you look at this, Bhadra IAS Academy का जो भी candidates थे अभी तक वो सब टॉपर थे. If you see ACS का रैंक का टॉपर नंबर 1 ब्रिजित पाठक, टॉपर सब रैंक Bhadra IAS Academy के है. इफ यू लुक एट अदर कैटेगरीज, एपीएस का टॉपर Bhadra IAS Academy के थे ये. उसके बाद देखिए हमारा टॉपर जो है अलग अलग कैटेगरी का पोस्ट, ये सब टॉपर Bhadra IAS Academy के स्टूडेंट्स थे. लेकिन सवाल ये आता है, ये टॉपर Bhadra IAS Academy से कैसे आते हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. जो नोट्स, जो क्वालिटी नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं, जो क्वालिटी टीचिंग हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस एकेडमी में, उसके ऊपर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके यूज करके जो स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन करते हैं, उनका जरूर सक्सेस होता है. सो टुडे नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू शो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम Bhadra IAS Academy classes. I now therefore call upon Julan sir to throw some light on this same topic. Hello viewers. Already James sir কৈছে যে কিয় টপাৰ্স Bhadra IAS Academy পৰা ইমান প্ৰত্যেক বছৰে ওলাই আহি আছে. ৰেংক 1, ৰেংক 2, ACS হওক বা APS হওক, কিয় Bhadra IAS Academy ইমান ভাল ৰিজাল্ট দিবলৈ প্ৰত্যেকবাৰ সক্ষম হৈছে. তো আমি যিখিনি বস্তু কৈছো যে অলৰেডি জেমছ চাই কৈছে যে যিখিনি নোটছ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ সেইখিনি নোটছ ইউটিলাইজ কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্টছে নিজে পঢ়ি পেলাই আল্টিমেটলি ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে. তো এই বস্তুটো আমি এনেই কোৱা নাইকিয়া, উইথ প্ৰুফ আমি ক'ম. অ'কে, এইবাৰ যিটো প্ৰিলিমছ আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত কিমান কুৱেশ্যনছ কমন আহিছে, এতিয়া শুভদীপ ছাৰে উইথ প্ৰুফ দেখাব যে ক্লাছত এইটো বস্তু পঢ়োৱা হৈছে, আমাৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল দিয়া আছে সেইটো বস্তু আহিছে, আৰু ছেম বস্তুটোকে APSC প্ৰিলিমছত আহিছে. অ'কে, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকক উইথ প্ৰুফ শুভদীপ ছাৰে ভালকে দেখাই দিব যে ক'ৰ পৰা কি বস্তু আহিছে, কি পঢ়োৱা হৈছিল ক্লাছত, আৰু কি কি বস্তু প্ৰিলিমছত আহিছে. তো মই মাইকটো শুভদীপ ছাৰ হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ. তো বাকীখিনি বস্তু শুভদীপ ছাৰে তোমালোকক ভালকে বুজাই দিব. থেংক ইউ. Thank you so much, Julan sir. So, guys, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए गए, राइट? एंड आई विल मेक श्योर दैट ये जो पीडीएफ पूरा आप लोग को दे रहा हूं ना, इस पीडीएफ का एक सेक्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दूंगा. आप जाकर वहां पे डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Alright, so this was the first question. हर एक पूरा सब कुछ मिला हुआ है, right? Fundamental rights, जैसे ये क्वेश्चन आया था, clearly you everyone have gone through it, right? You guys know the correct answer of this as well, but where it has been taught in our class, yes, see, these are the class notes that we have clearly directly, and यहाँ पे मार्किंग भी कर दिया गया, ऐसा नहीं हम लोग बकवास नहीं कर रहे हैं, clearly मार्किंग किया गया जहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. Next question again, polity का question है, right? Again, I am not discussing the answer because that has already been discussed in morning session. You can watch the video from the YouTube as well, right? So yeah, but what is the proof that we are going to give you is that, see, we have already underlined these sections, that yes, these sections have clearly been asked in our papers. Similarly goes with the judicial review वाला question जो था, उसके भी आप sample देख लीजिए. Yes, this was very much taught in our class. Similarly, if I'll talk about the writ issued, right, various writs होते हैं, right, उनके related जो questions आते हैं, and these are very much common, but yes, in our classes also we focus on the most important aspect, and yes, you can clearly see that these things have been asked, right? Similarly goes with the Indian Constitution के related जो question है, reservation in public employment, right? So the answer was 16 subclause 4, right? So you can clearly see direct, है ना? Simply this is the overall PDF with Bhadra IAS logo. You can see, yeah, directive principles of state policies के related जो questions था, yes, that is also taken directly from our
module of notes that we provide in our classroom, right? Similarly goes with the rule of law का core features क्या है? Yes, the answer is clearly given. Similarly, if I talk about the vice president of India of the Indian Constitution, उसके qualifications क्या है? Right? देखिए clearly सब कुछ लिखा हुआ है. He should be qualified to become a member of राज्यसभा. देख लो थर्ड नंबर पॉइंट. और यहां पे क्या लिखा हुआ है? द पर्सन मस्ट बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. नहीं नहीं भैया, उनका क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए दैट ही शुड बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर, है ना? ही मस्ट नॉट बी द मेंबर. यहां पे लिखा हुआ मस्ट बी. ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है, राइट? इसीलिए तो यहां पे दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाला गया है, राइट? Similarly, if I talk about this very question, then yes, the answer is D. Root of co-warranto के related जो question था, and of course you can go through it. That whatever we have taught, the similar thing has came, right? Similarly goes with the northeastern region के related, मतलब capital cities of northeastern region in proposed to be connected with Bangladesh via rail route. Then yes, this is also something which has already been done in our classroom notes. And of course, again and again I'm telling you that in notes को हम लोग नीचे description session में लगा दे रहे हैं. आप उस PDF को download करके you can verify it yourself, because this is the 100% claim that we are doing, that yes, these all things have directly come from our institute. Now ये एक token of appreciation ही नहीं, मैं we are very proud of becoming this the member of Bhadra IAS, so that the things that we are providing, that is what you guys are coming up with, right? Next is in which year Assam region was separated by Bengal presidency? Yes, the answer, it was clearly taught in our class only, right? Similarly G20 member countries के representation के जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारा हम लोगों ने क्लास के करंट अफेयर में भी किया था, but yes, this is also there in our Bhadra AS Academy का बुक, जो हम लोग बुकलेट प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें भी क्लियरली हर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है. इससे क्या पता चल रहा है आपको? that in books are very very sufficient in order to crack it, right? And that is what, see, the collection of the question that we are providing, it is clearly example that yes, जो जो हम लोग चीज आपको पढ़ा रहे हैं उनसे बाहर तो एटलीस्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिल रहा, राइट? तो अभी हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शंस के जैसे क्वेश्चंस डिस्कस किए, वैसे ही हिस्ट्री का भी हम लोग डिस्कशन करके आई विल जस्ट स्क्रिप थ्रू, राइट? आई विल नॉट बी डिस्कसिंग एज अ होल, right? Because of course history is not my area of expertise, I would say, but yes, whatever the questions that have came in your paper, yes, वो हम लोग दिखा सकते हैं. जैसे वर्मान डायनेस्टी के रिलेटेड देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन में सीधा लिखा वर्मान डायनेस्टी के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए, सारे क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स, द प्रेशियस क्लास नोट व्हाट वी कैन टेल, राइट? सिमिलरली गोज विद वैदिक लिटरेचर के रिलेटेड जो क्वेश्चन था, यस, Vedic literature के related भी notes are already provided in our classes. Similarly goes with Treaty of Yangdabu. This is very much common question though, but yeah, the things have already been covered in our class notes as well. If I talk about next question, then yes, this is also being done in our classroom, right? Alauddin Khilji sought to fix the cost of what? Which among the following? Yes, you can easily find out the answer from the notes, class notes that we have given, right? Similarly goes with here as well. Yes, we have done these questions. Then yeah, these questions, of course, modern Indian history के questions have already been taught upon in our classes. Similarly British government in chronological, मतलब यहाँ पे बोला गया social reforms जो कि British government के द्वारा लाए गए थे, chronological order में discuss करो. Then yeah, इनकी chronology भी classes में properly discussions भी की गई है, right? Next, if I talk about this question of next question, then yes, these notes are clearly visible. आप सिर्फ download करके you can go through it, right? Similarly, science and technology के अगर questions अगर discuss करें, ज़्यादा questions वैसे थे नहीं, zoonosis का question था, right? And of course, the answer was animal to human. And yes, this was there, which was very much taught in our class, that zoonotic diseases होते क्या है, right? Similarly goes with the optical fiber communication के related जो questions है, तो classes में भी हमारे optical fiber के related proper discussions की गई हैं, and yes, you can verify it as well, right? Geography में अगर आते हैं हमारा question, इंटरनेशनल कन्वेंशन, बासल कन्वेंशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर बासल कन्वेंशन था, तो ऑफ कोर्स यस, ये हमारे एनवायरनमेंट नोट्स में आपको क्लियरली
मिल जाएंगे बाकी कन्वेंशंस के रिलेटेड। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला क्वेश्चन, वो क्लास के नोट्स में हम लोगों को प्रॉपर्ली डिस्कस की गई थी दैट पोलर रीजन में ज्यादा ग्रेविटी क्यों होती है, इक्वेटोरियल रीजन में कम ग्रेविटी क्यों होती है, ऑफ कोर्स हमारे अर्थ जियोइड शेप्स का क्यों है, उसके रिलेटेड कैसे ग्रेविटी एनॉमलीज वेरी करती रहती है। सो यस, दिस वाज वेरी मच taught in our classes. Similarly, if I talk about the cloud burst aspect, then the concept of cloud burst was absolutely been given in our classes as well. Next is if I talk about the climatic conditions, I mean salinization farmland में क्यों होता है, तो salinization किसका होता है, लैंड का होता है, लैंड salinity और क्या इस टाइप का मतलब सलाइन सॉइल्स भी होता है, राइट। तो सॉइल्स वाले जब हम लोगों ने डिस्कशंस किया था, सलाइन या फिर अल्कलाइन सॉइल किसको कहते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड देम, एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली डिस्कस्ड इन आवर क्लास। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द असम का बॉर्डर किस किस देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से राज्य है ना, तो ऑफ कोर्स यस दीज थिंग्स वेर क्लियरली बीन टॉट इन क्लास। सुबह वाले क्लासेस में भी वैसे डिस्कस किया गया था, राइट। बट हाँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा दैट असम शेयर बॉर्डर किन किन के साथ करता है, तो ये तो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था विच इज इजी, राइट। बट देखो ये वाला यहाँ पर, हाँ दिस इज द क्लास नोट्स दैट वी आर ब्रॉट अप विद, राइट। यहाँ पे क्लियरली क्लास में जो है प्रॉपर्ली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, असम ज्योग्राफी जो क्लासेस हमारे सेक्शंस में होता है उनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग डिमार्केशंस की हुई रहती है, और आपको क्लासेस में इनके मैप्स भी बनवाए जाते हैं और बताए जाते हैं दैट बताओ हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। तो जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग का आया है सिर्फ हम लोग वही क्लेम कर रहे हैं। अगेन let me tell you, we are not claiming something which is absolutely superficial, है ना। जितना हमारे क्लासेस से क्वेश्चंस आए हैं उतने क्लासेस को हम लोग क्लियरली विद प्रूफ वी आर शोइंग यू। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू विद दिस क्वेश्चन, राइट। झेलम चेनाब रवि सतलुज जोजिला पासेस के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद पीक्स के बारे में दिया हुआ है। तो इफ यू विल सी आवर क्लासेस नोट्स, यस this was there which was taught in class, yes this was a note which was given in our class notes to each and every sections, yes this is the जितने सारे हमारे इंडिया में पासेस है उन पासेस के प्रॉपर लोकेशंस दी हुई हैं, yes various hills है ना, कहां कहां कौन कौन से हिल्स है उनके प्रॉपर जो डिमार्केशंस है वो क्लासेस में इन नोट्स के थ्रू हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। प्लीज यू कैन गो थ्रू द आंसर, राइट। नेक्स्ट, कहां से इक्वेटर गुजरता है, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, ये हम लोग देखो ज्योग्राफी जो क्लासेस होती है, आई एम आल्सो द फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी इन भद्राइस एकेडमी, सो व्हाट वी डू इज दैट इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ कंडक्टिंग आवर क्लासेस वी डू टेक दीज सेशंस, जहां पर हम लोग सेशंस लेते हैं एटलस के बारे में, राइट। दैट इज एटलस को देखना कैसा है, एटलस को पढ़ना कैसा है, एटलस को कैसे ओवरऑल एनालाइज करना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो अब ये भी तो क्वेश्चन उसी का है ना। देखो क्या बोला गया है, इक्वेटर से कौन कौन सा देश पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सा देश पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सा देश पास कर रहा है। तो जी हाँ, इन सब के बारे में जो है हम लोगों ने क्लासेस के एटलस के टॉपिक्स में वो चीज दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट यस you can cross verify it from our students as well. Next is 95 नंबर, अच्छा क्वेश्चन जो इसमें था वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क है, यस महाराष्ट्र, राइट। श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच में कौन से नेशनल हाईवे है, आपका जाके पोरबंदर से लेकर आपका सिलचर में कौन नेशनल हाईवे है, तो उनके बारे में ये नेशनल हाईवे से ही क्वेश्चन आया है। अगेन इन नेशनल हाईवे, ये दिस इज द स्क्रीनशॉट आवर नेशनल हाईवे क्लासेस, जहां पे हम लोगों ने इन सब बारे में भी डिस्कस किया था। नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में प्रॉपर्ली ये चीजें डिस्कस हुई थी, राइट। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ट्राइब है ना, शेरडुफेकेंस, रियांग ट्राइब। रियांग ट्राइब में क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, इतना ज्यादा न्यूज में था, ये मैं बार बार बताता था। ब्रू ट्राइब्स के बारे में कितना ज्यादा यहाँ पे क्लास न्यूज डिस्कशन नहीं होता है, कौन करता है, मैं ही तो करता हूं। ये ब्रू ट्राइब्स के बारे में हम लोगों ने नहीं बतलाया था दैट मिजोरम से इनको हटाकर त्रिपुरा में शिफ्ट करवा रहा है ना, हुआ ना, क्लींजिंग हो रहा था, एथनिक क्लींजिंग आपका मिजोरम में, है ना, इसलिए दे हैव टेकन शेल्टर इन त्रिपुरा। हम लोगों ने डिस्कस एब्सोल्युटली डिस्कस किया था, एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट हियर एज वेल, राइट। विद रेफरेंस टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर ऑफ असम, है ना, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक, जिसमें क्या यह जो तिखाऊ रिवर है, क्या ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। सिमिलरली रायडाक रिवर, क्या रायडाक रिवर ये आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर है, नहीं नहीं, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ
बराक रिवर तो यही नहीं है, ब्रह्मपुत्र का ही है, राइट? सो अगेन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज जो है, मैं ऑप्शन यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट मैं यहां पे प्रूफ दिखा रहा हूं दैट हमारे क्लासेस में क्या क्या चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करवाए हुए हैं, और यहां पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं दैट जी हाँ, देखो यहां पे दिखाओ, रिवर क्लियरली दिया हुआ है ना? सो ये बेसिक बेसिक जो रिवर है, धानसिरी, कौन कौन से रिवर नहीं दिया हुआ है, दिहांग रिवर है ना, लोहित रिवर, राइट, सब कुछ A to Z रिवर, मतलब यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस थिंग, राइट? क्योंकि एक एक चीज अगर फिर से एक्सप्लेन इन ओवरऑल करने जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ आसाम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, राइट? ये बोडोस के बारे में दिया हुआ था, मिशिंग ट्राइब के बारे में दिया हुआ था, तीवा बायखो ट्राइब के बारे में दिया हुआ था. अब यहीं से अगर देख लोगे, हमारे दिमासा ट्राइब के बारे में हम लोगों ने क्लास में नहीं डिस्कस किया था? एब्सोल्युटली किया हुआ था. क्या हमारे, देखो ये तो कुछ दिन पहले यार असम, मतलब हमारे YouTube में ही पड़ा हुआ है, आप देख लो ना. ये मैंने जो कंडक्ट करवाता था ना MCQ सेशंस, है ना, हर रोज शाम को जो 8 बजे लाइव सेशंस चलती थी, वहां का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बाइको फेस्टिवल पूछा था ना मैंने, क्यों? करंट अफेयर में था ये बाइको फेस्टिवल, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड इट. एंड उसी के रिलेटेड तो देखो ना, क्वेश्चन में एक पॉइंट तो आया ना, बाइको इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ कार्बीज, आया क्या? नहीं, है ना? सो क्या ये ट्रू है? नहीं, राइट? तो इसीलिए तो ये ट्रू नहीं है. और हम लोगों ने वही तो डिस्कस किया था, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? राभा ट्राइब्स के द्वारा. अब देखो ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या से बोलूं यार, ये खुद से तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई. हम लोग क्या दायित्व है दैट हम लोग आपको इसके बारे में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपर्ली, बट यस अल्टीमेटली यू नीड टू मेक द आंसर बाय योरसेल्फ. यू नीड टू, है ना, क्योंकि उसी से तो आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना. यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी इसके बारे में दिए हुए हैं, ये प्लेन, दे आर वन ऑफ द अमंग द प्लेन ट्राइब्स ऑफ असम, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इनका, तो ये सब कुछ भी पूछा जा सकता था ना. ठीक है, तो उसके प्रूफ ही तो हम लोगों ने दिया हुआ है. यही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है विद रिफरेंस टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, तो अभी जो बीटीआर डिस्ट्रिक्ट्स है, उनका हर बीटीआर डिस्ट्रिक्ट क्या भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कछार डिस्ट्रिक्ट किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है? धुबरी, कछार और करीमगंज क्या बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? तो कितने बार हम लोगों ने क्लासेस में करवाया था, आप देख लो ना. ये बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्मी के रिलेटेड हम लोगों ने कितने सारे एमसीक्यूज करवाए हैं. उसमें जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यार दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना. हम लोगों ने वेरियस कछार डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे न्यूज, बहुत समय न्यूज में थे. तो जब भी कोई न्यूज में आता है तो एटलीस्ट आपको क्या करना है दैट आपको वेरीफाई कर लेना आजू बाजू कौन से डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है. सिमिलरली गोज विद ये कौन कौन से रिवर्स, कौन कौन से बैंक्स. तो यस ऑफ कोर्स these both things were clearly done in our classes. From this you can easily find out the correct option, right? Similarly goes with which of the following statement is correct with regarding to Arunodaya scheme of the government of India. भाई ये क्या मैं बताऊं, 10 बार शायद इस स्कीम को डिस्कस किया गया, अरुणोदय स्कीम. देखो प्रूफ है, राइट? सो ये तो था इकोनॉमिक के सेक्शंस, राइट? अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के भी, सॉरी वो ज्योग्राफी का था, अभी थोड़ा इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं. जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था नीति आयोग, this is already there available in our booklet as well, and this was already done in our class notes as well, right? देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रिलेटेड अभी ये सब तो पीडीएफ डाला हुआ था ना कुछ दिन पहले ही. तो हम लोगों ने जो स्कीम वाला जो पीडीएफ निकाला था, 2 वॉल्यूम्स में आया था ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ये वॉल्यूम 1 का ही तो स्क्रीनशॉट है भाई, है ना. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डन इन आवर क्लास नोट्स. देखो बुक में, भद्रा आईएएस एकेडमी का जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, राइट? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके रिलेटेड जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, कौन सा स्टेटमेंट सही था? दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन आवर बुकलेट ओनली, राइट? Similarly, if I talk about which of the following clusters are correct representation of G20 member country, कितना बार बताऊं ये सब G20 member country, भाई करंट अफेयर में बहुत बार हुआ है. यस हमारे जो बुकलेट है भद्रा आईएएस एकेडमी का, उसमें भी क्लियरली मेंशन है which are the group which are there in G20 countries, right? Similarly, if I talk about which of the following statements are correct with regard to Arunodaya scheme, फिर से वो क्वेश्चन आ गया था. अच्छा मतलब ये इन्होंने इकोनॉमी में भी डाला हुआ है, बट कोई बात नहीं. यस देखो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर ओवरलैपिंग ना, कुछ कुछ करंट अफेयर इकोनॉमी से ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ कुछ करंट अफेयर पॉलिटी से ओवरलैप कर रहे हैं. सो यस वो चलता है, राइट? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट? सो यस, एंड वो चीज मैंने अपना क्रैश कोर्स में भी कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, अगर आप देख लीजिएगा भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, वहां पे मैंने क्लियरली बोला था, ये गारंटी लिख लो, मैं आउट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट? एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दैट केम, राइट? एंड सिमिलरली ये देखो क्लास में भी हुआ है, ऐसा नहीं दैट नहीं हुआ है, राइट?
क्लासेस में भी इसके रिलेटेड देखो क्वेश्चन आया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। यही तो सवाल था ना, ये सब थोड़ा वर्डिंग चेंज किए हुए थे, राइट, है ना। सो कब 2023, राइट। सो अगेन ये क्लासेस में बहुत बार हुआ है, इकोनॉमी में हुआ है, ज्योग्राफी में हुआ है, कहां नहीं हुआ ये तो, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यस, उसका भी आंसर देख लीजिएगा क्लियरली, हमारे पीडीएफ जो वॉल्यूम 1 जो पीडीएफ लाया गया था, है ना, उसमें ये प्रॉपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में A to Z चीजें मेंशन की हुई थी, राइट। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, ओके। जीडीपी जीएनपी वाले क्वेश्चंस, यस दिस वाज देयर डायरेक्टली given in our MCQ test series, right. Next come is this very question, the assertion reasoning wala question. Yes, this was also taught in our classes, right. Similarly, which of the following sectors are identified as focus areas of नीति forum for northeast? Yes, ये देखो हमारे बुक में clearly डायरेक्ट बुक से आया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बुक से आया हुआ क्वेश्चन भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह पोस्ट ब्रूस ब्रदर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यस दैट वाज आल्सो टॉट इन आवर क्लास, है ना। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जो पूछा गया था, यस दैट वाज आल्सो देयर व्हिच वाज डायरेक्टली गिवन इन आवर बुकलेट ओनली, राइट। सिमिलरली गोज विद सेक्स रेशियो ऑफ केरला एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन केरला, वो वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो गिवन इन आवर भद्राइस एकेडमी का बुकलेट। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो क्या है, बहुत इजी है यार, बहुत न्यूज़पेपर में भी आता है, 17 गोल्स होते हैं। यस दैट वाज डायरेक्टली गिवन इन आवर भद्राइस एकेडमिक बुकलेट, राइट। देन कम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेमस असमीज पोएट नीलोमणि फुकान, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन था उनका देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, दैट जो भी हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्रुप्स में, उनका ग्रुप्स बनाया गया है जिसमें हर रोज के बेसिस में हम लोग ना पीडीएफ शेयर करते हैं, राइट। सो यस दीज आर द कट शॉट ऑफ दोस पीडीएफ्स दैट आर clearly signifying that yes, these are the things which we have already given them, and from these things only they have got the question, right. Now which of the following is the theme of the World Rhino Day 2022? 5 rhino species forever। तो इसके रिलेटेड भी हम लोगों ने क्लासेस में मतलब ग्रुप्स में क्वेश्चंस जो दिया हुआ था और उसके एक्सप्लेनेशन में ये क्लियरली मेंशन भी था। नेक्स्ट इज बंगाल प्रेसिडेंसी का रिलेटेड जो क्वेश्चन था, यस दैट वाज देयर ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आवर नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज होते हैं, राइट। Then comes who among the following environmentalists or organizations has been awarded Champions of Earth Award, right। तो Champions of Earth Award के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था 23 नवंबर असम करंट अफेयर एनालिसिस में, अगर देख लीजिएगा जो क्लासरूम स्टूडेंट्स है they have got the access of it। So see there are some prime materials which are already been given to classroom students, right। और वो प्राइम मटेरियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इसको अगर घोड़ के अगर आप पी लिया ना आपने, तब it will give you an edge over others, right। पद्मश्री 2023 निपोन गोस्वामी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, यस द सेम मटेरियल इज डायरेक्टली गिवन। देख लो सब कुछ क्लियरली, ये bhadraisacademy.in पूरा ट्रेडमार्क हमारा सब कुछ दिया हुआ है, राइट। देन कम्स आसाम कैबिनेट अप्रूवल मर्जर, अच्छा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए रिसेंटली, उसके रिलेटेड भी प्रॉपर्ली नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 31 हो गया। देख लो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में को ये किया गया था, प्रॉपर्ली ये सब मेंशन भी किया गया है, राइट। इसमें देख लो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट विल बी मर्ज विद सोनितपुर, होजाई विद नगांव विद नगांव, देन कम्स बजाली विद बोरपेटा, तुमुलपुर विल बी मर्ज विद बक्सा। क्लियरली यही तो है ना, यही से तो क्वेश्चन है, और कुछ अलग तो ना पूछा है, यही तो क्वेश्चन है, यही वाला उठाकर, है ना। ओके नेक्स्ट, एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, यस दैट वाज आल्सो टॉट इन आवर क्लासेस, राइट। So yes, this is the end of the session that we can clearly tell you that yes, these are the things which were there in the paper and which directly popped up in your classes, right? And as the time pass by, we'll keep on checking, because there are few of the questions in which we are not getting the sources. As soon as we get it, we will again upload them, because there are many questions there. Let me tell you, there are still few of the questions that are being left which are being taught, बट हम लोग क्या कर रहे हैं दैट पास्ट ईयर के हम लोगों ने जो भी पढ़ाया है ना अभी तक, उनके वीडियो क्लिप्स, उनके सब कुछ को वेरीफाई करके आपको प्रूफ के साथ हम लोग
आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे प्रेजेंट करते रहेंगे, राइट? सो अगेन दिस वाज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाटएवर द थिंग्स दैट वर देयर केम इन आवर पेपर. So with this guys, this is the end of the session. We'll be meeting in the very next session. Thank you very much.